Okay, let us start again. And today we will do, first of all, I will tell you what we have done in previous class. तो बच्चे आप सबको पता है in previous class हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? कोन के बारे में. And we have done what is the total surface area and curved surface area of the cone. Okay, and today we will discuss what? Volume of the cone. Volume of the cone. But before I move to the next part, we are just starting from here. Here is radius, height, and here is slant height. Now what I can say, L is equal to h square plus r square. समझ रहे हो बच्चों? L की वैल्यू क्या थी हमारे पास? h square plus r square. तो इसको हम L के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते थे, देखते थे. And what we have done so far, curved surface area, which is what we can say, pi r and L. और आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे? What is the शाबाश, Volume of the cone. वॉल्यूम ऑफ द कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन, अच्छा, एक टोटल सरफेस एरिया था एंड टोटल सरफेस एरिया इज नोन एज पाई आर एल प्लस आर. दिस इज द वॉल्यूम. एंड एज आई सेड टू यू, टुडे वी विल डिस्कस द वॉल्यूम. और वॉल्यूम के लिए देखिए हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे. चेक इट माय पॉइंट. अच्छा, एक चीज बताइए बच्चे, इफ यू सी दिस फिगर, तो आई एम कंप्लीटिंग दिस फिगर, चेक कीजिए. एंड इंटरेस्टिंगली टेल मी नाउ व्हाट इज दिस नाउ? Cylinder. Okay, in this cylinder, if you see, total 3 parts are there. First is this, second is this, and third is this. और ये तीनों के तीनों पार्ट क्या होते हैं बच्चे? तीनों के तीनों पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो आई विल से कि ये सिलेंडर का अगर हमारे पास R होता and this one is H, so what we can write about cylinder? Volume of the cylinder is pi r square H. और हम इसको किससे डिवाइड करते? 1/3. 3 से क्या कर देते? डिवाइड कर देते. Now what is this? This is the volume of cone. और इसको हम सिंपली क्या डिफाइन कर देते? वॉल्यूम ऑफ द कोन के नाम से क्या कर देते? डिफाइन कर देते. एक तो सिंपल सी बात ये हुई ना, बड़े सिंपल से फॉर्मेट से हमने डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. हाँ, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क कि सर ये मेरे को चीज पता नहीं चली, या हाउ वी कैन सॉल्व इट. एनीबॉडी जिसको लगता हो
कि ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया या आपको नहीं समझ लगा? इज इट ओके राइट नाउ? यस, रिस्पॉन्ड किया करो थ्रू मैसेजेस। sir. तो दिस इज द सिंपल डेरिवेशन ऑफ द volume of the cone. And now I am moving to the questions of this part. How we will define the questions here. तो प्लीज, अच्छा एक चीज और है बस आपसे बताने, वॉल्यूम के जो यूनिट्स होते हैं वो बच्चे हमेशा कौन से होते हैं? Cube. क्यूबिकल यूनिट होते हैं, ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। Why we are taking a cubical reference? चलिए, तो let us start with my questions, and here I am starting with your exercise 13.7 from your book, and he said find the volume of right circular cone. ये आपका cone है बच्चे, right circular cone, whose radius is 6 centimeter and whose height is 7 centimeter. देखिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, अभी अभी हमने इसको स्टार्ट किया कि वी कैन राइट वॉल्यूम एज पाई आर स्क्वायर एच बाई 3, और सिंपली हम इसको डिफाइन करेंगे 1/3 पाई इज इक्वल टू 22/7, आर 6 स्क्वायर मीन्स टू से 6 into 6, and then h 7। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, 7 7 3 3, just multiply it and you will get 264। हाँ जी, tell me what are the units? Centimeter cube. Centimeter cube. Yes, very good, it is centimeter cube, because radius is given to you in centimeter and height is also given to you in terms of centimeter. So we can say its volume is centimeter cube. Cube. Okay, अच्छा एक चीज बच्चे मैंने और बताई थी। Now come on to the question number 2. Here we have two parts, 1 and 2, and I think 2 you will do it easily, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। Now we start with question number 2, and how we will start it. See this one. Find the capacity in liters of a conical vessel. देखिए what he has said, conical vessel. Whose radius is 7 centimeter and whose slant height means to say L is equal to 25। और बच्चे हम इसको क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? Its capacity. Now tell me in technical terms what is capacity? Volume. Volume. Very good. We want to find out the volume of this cone, but before I proceed to the volume, check it. बच्चे ये आपके पास L है 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास R है 7 सेंटीमीटर, and now we want to find out the value of H, because the formula of volume is pi R square H divided by 3। क्या लिखेंगे बच्चे हम? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी? वॉल्यूम की वैल्यू होगी। एंड फॉर वॉल्यूम वी नीड वन मोर थिंग, दैट इज रेडियस। तो रेडियस हम कैसे फाइंड आउट करें? सॉरी, हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू नो ना पाइथागोरस, in this Yes, yellow sir. triangle
I can write L square H square plus R square. L square is equal to 25 square. H square we want to find out, and R square is 7. So we can simply say H square is equal to 25 square minus 7 square. And when you solve it, you will find H square. A square minus B square बचे. A plus B 32. A minus B 18. Now, if you find the square root of this particular quantity, it becomes 24. So we can simply say H is equal to 24 centimeter. Now apply it here in our volume. 1 by 3. Pi is 22 upon 7. What is R? 7 means to say 7 into 7, and H 24. ये बड़ी easy calculation है बच्चे when you solve it. So you will find 7 and 7 cancel, 3 and this cancel. Just multiply and tell me the answer. What is the answer of this particular question? Very good. I'm waiting for your response. Very good. It is 1232 centimeter cube. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया, रेफरेंस हो गया. देखिए किसी में हाइट दिया है, किसी में कुछ दिया है, तो वी विल find the required parameter L, R and H, and after finding this we will move to the next part जो भी हमारे पास क्वेश्चन के formations. Now move on to the next one. Now if you see question number 3 of your booklet, what he said, the height of the cone, check my point, height means standard height, not slant height, this height. So H is given to you 15 centimeter and its volume, देखिए बच्चे इसमें एक चीज आपको और प्रोवाइड करती है, volume is equal to 1570 centimeter cube, and he said find the radius of the base. हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चे, radius of the base. Now how we will solve this question? देखिए it's very interesting. H is given to you and R is given to you. तो how we will move to the next part? तो बच्चे हम यहां से शुरू करेंगे. Let the volume be pi R square and H. क्या करेंगे, pi R square and H, और हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा, pi is equal to 22 upon 7 R is equal to, ये हमने फाइंड आउट करना है, and H is equal to 15 centimeter. Now instead of this pi, write the volume. What is the volume? Sir, in this question, sir, pi, the value of pi is 3.14. Yes. देखिए आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि whether it is given to you or not given to you. अगर उसने ये कहा है कि use pi is equal to 3/14, तो हम 3/14 यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक, तो instead of this we can use 3.14 and volume is this one. Just move ahead, और जैसे हम सॉल्व करते हैं तो R square becomes 1570 upon 3.14 divided by 50. अब बच्चे हमारा काम हो जाता है कि हाउ वी विल सॉल्व इट. बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो इट कैन बी रिटन एज 100. अगर मैं डेसिमल को हटा और
आगे हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। एक चीज और बाकी थी बच्चे, यहाँ पे एक 1/3 भी होता है, तो हम यहाँ से जो 1/3 था उसको ऐसे क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ सॉल्व इट। जैसे जैसे हम सॉल्व करें, देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो इट बिकम्स 5, 5 को इसके साथ करेंगे तो इट बिकम्स 314, 314 के साथ कैंसिल हो गया, तो r square is equal to 100. Now what is the value of r? The 10. 10 सेंटीमीटर। क्या डिफाइन करेंगे इसको, 10 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। जो भी हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू होगी। कम ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मेशन। Question number 3. Now come on to question number 4. किसी को डाउट तो नहीं बचे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? हमने क्या फाइंड आउट करना था इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चंस में हम और मूव कर रहे हैं। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड व्हाट ही सेड, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, देखिए बार बार ना आपको सेम टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, it is given to you 48 pi centimeter cube of height, और उसकी हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द हाइट, 9 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। अब वो आपको कह रहा है बच्चे कि फाइंड द डायमीटर। डायमीटर मींस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द रेडियस एंड देन यू विल फाइंड द डायमीटर। लीजिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, वी नो दैट volume is equal to 1/3 pi r square h as far as our formula is concerned. Now volume is given to you, you will write it as 48 pi, 1/3 pi is again given to you, next is r square, and the next is h, h is 9. Now what we can do, we will just solve, पाई के साथ बच्चे क्या कर दीजिए, पाई कैंसिल कर दीजिए, 3 के साथ ये कैंसिल आउट कर दीजिए और ये 3 इसके साथ, तो it will be 16 is equal to r square. Now what you can say, r is equal to 4 centimeter, and tell me what he asked you, find diameter. out the diameter. So for diameter is equal to 8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा इसका डायमीटर, 8 centimeter. 8 सेंटीमीटर। Got my point? Yes, sir. So this is the way we can solve it. Okay, now come on to next question. क्वेश्चन नंबर 5, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। अच्छा एक चीज देखिए, हैव यू सीन दिस, क्या बोलते हैं हम इसको, Pit. पिट। तो पिट कैन बी क्यूबिकल, सिलेंड्रिकल और कोनिकल। तो अगर मैं बच्चे इसमें कोनिकल पिट की बात करूं
तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट ही सेड, ठीक, ये छोटे छोटे आपने देखे होंगे वॉर्म्स जो बना लेते हैं कोनिकल पिट, तो ये उस टाइप का क्या है, हमारे पास एक कोनिकल क्या बनाया गया है, पिट बनाया गया है, या इवन वी कैन सी लाइक दिस वन अंदर से, ठीक। तो व्हाट ही सेड इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड अ कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5, एक आपके पास इस तरह का कोनिकल पिट है और उसका डायमीटर क्या है, थ्री पॉइंट 5 सेंटीमीटर डायमीटर है और उसको हम 2 से क्या करें, डिवाइड करें, ठीक। एंड 12 मीटर डीप, 12 मीटर डीप मींस ये उसकी क्या होगी बच्चे, डेप्थ होगी। और अगर हम इसको रिटर्न में बोलेंगे तो अवर रेडियस इज 3.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, अवर हाइट इज 12 मीटर। बच्चे अब इसने पता आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, प्लीज चेक माय पॉइंट, कैपेसिटी मींस इसमें हम कितना मटेरियल डाल सकते हैं, तो अल्टीमेटली हमने क्या फाइंड आउट करना है, इट्स वॉल्यूम। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसने हमें दिया है वॉल्यूम इन कैपेसिटी ऑफ किलोलीटर्स, तो वो भी आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ठीक है, 1/3 हो गया। पाई की वैल्यू को क्या लिखेंगे, 22/7। देखिए आर की वैल्यू क्या बची, 3.5 डिवाइडेड बाई 2, तो व्हाट वी कैन राइट, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज एच, 12 मीटर। बच्चे ध्यान से देखना जो मैं अभी करूंगा सॉल्व, ठीक। तो वी विल सिंपली राइट इट एज 1.3 22/7 3.5 इंटू 3.5, बड़े मैं नॉर्मल टर्म्स में लिख रहा हूँ, 2 and 2 into this one. So we will simply solve it. Now check it how we will do this. 3 into that 4 and 4 and 4 cancelled. This is 0.5. Okay. अब हम इसको सिंपल से स्ट्रीम में सॉल्व कर, देखो अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो यू विल राइट दिस 0.5 एज 1/2 and this 3.5 as this one. कोई दिक्कत नहीं आपके पास कि ये आपके पास क्वेश्चन क्या होगी बनने जा रही। तो चेक माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, इसको आपने सॉल्व किया 11, इसको आपने सॉल्व किया 2, तो इट बिकम्स 77/2 मीटर क्यूब। हाँ जी, कैन यू टेल मी हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू किलोलीटर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है बच्चे, तो याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, बस। तो यू विल सिंपली से दिस एज 38.5 किलो लीटर्स। This is the way to solve this particular question. हाँ जी बच्चे, किसी का डाउट तो नहीं है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि हाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल इन दिस क्वेश्चन।
Very good. Can we move further? Yes, sir. Yes, sir. देखिए ये ना बड़े कॉमन से क्वेश्चन है और आपको लगेगा कि वी आर रिपीटिंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप सिंपल सा डिफाइन करें तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज दैट? द वॉल्यूम ऑफ द, देखिए बार बार वॉल्यूम की बात आएगी। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज, ये आपके पास राइट सर्कुलर कोन, and its volume is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28, तो हमें यहां पे क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द कोन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है स्लांट हाइट एंड लास्ट में हमने फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वो तो इसके बच्चे बाय प्रोडक्ट है। तो अवर फर्स्ट टारगेट इज हाउ टू फाइंड आउट द हाइट। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन, देखिए मैं बार बार आई विल रिपीटिंग दिस फार्मूला। वॉल्यूम इज 9856 1/3 पाई सेम 22/7 r square 14 into 14 into h which we gonna find। और इंटरेस्टिंग चीज इसमें बचे ये है, चेक कीजिए, इट विल कैंसल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एवरीथिंग 9856, okay, this 3 will come up divided by 22, 2 and 14 which is equal to h। और स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको लगे कि वी कैन सॉल्व इट प्रॉपरली, बिल्कुल उसी रेफरेंस में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड टेल मी द वैल्यू। शाबाश। Sir, 48 centimeter. 48 सेंटीमीटर। बट हाउ वी कैन प्रोसीड इट नॉर्मली? चलिए आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट्स वेरी वेरी गुड। ओके, हाउ वी विल प्रोसीड इट इन अ नॉर्मल सेंस? देखिए हम इसको 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो इट बिकम्स 4 9 2 6। कोई डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट में जाएंगे तो इट कैन बी रिटन एज 2 एंड दिस कैन बी डिवाइडेड एज 2 4 6 3। और इसको अगर हमने इसको हमने 2 के साथ डिवाइड करना था तो ये आ गया था 11। अब हम ट्राई करते हैं बच्चे लेंथी सा, अगर सीधा 11 के साथ डिवाइड करें तो इट बिकम्स 2, सीधा 11 के साथ डिवाइड होगा, नहीं हो रहा। Sir, actually it will be 4928. हाँ, इट्स 4928। और आगे यहाँ पे क्या होने वाला था बच्चे? Sir, it will get 2 cancelled out by 11. 2 अब होगा। अब चेक कीजिए, हम इसको कैंसिल करेंगे 11 के साथ, 2 नेक्स्ट इज 2 एंड 4। और ये लीजिए, अब ये सीधा 14 के साथ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 16। तो वी कैन सिंपली से h इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। बट अभी सेकंड क्वेश्चन बाकी है बच्चे, दिस इज h। नाउ व्हाट ही सेड इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम
sequence, what is the slant height? Haji, can anybody tell me how we will go to slant height? Yes, The sir. Pythagoras theorem, sir. Pythagoras Yes. theorem. Very good. You every one of you know that we will move to the next step by Pythagoras theorem in yellow triangle. So we will simply say L square is equal to H square plus R square. So L square can be written as H square, means to say 48 square. Solve करके देखिए बच्चे, it is 2304. What is R square? Means to say 14. 196. And L can be written as, अच्छा इसको देखिएगा, when you solve it, it becomes 2500. और कितना इंटरेस्टिंग है. What is L? 50 centimeter. Why? Because you will find the square root of this 2500 centimeter. तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है बच्चे? L की वैल्यू. L is equal to 50. Now what we can do right now? ये तो हो गया 2500. अब हमने L की वैल्यू क्या होगी? 50. Now come on to my point कि हम इसको आगे कैसे लेके जाए. तो आगे आपको कहा गया था कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैन बी रिटन एज पाई Pi आर RL. L. तो जस्ट वी विल सॉल्व. पाई इज इक्वल टू 22/7, R is equal to 40, and what is L? 50 centimeter. 50 centimeters. Solve it. It becomes 2. Just multiply, and you will get 2200 centimeter cube is the curved surface area of a triangle. Cool. और बच्चे जो आपके पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज वेरी ग्रेट क्वेश्चन, एंड इन मैथमेटिकल वे वी कॉल इट अ लैमिना. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि ये आपके पास कहना क्या चाहता है. Check it, and it's a good question. He said a right angle triangle ABC with side 5 centimeter, 12 and 13. Here is given to you a right triangle whose sides are 12, 5 and 30. It is given to you. और ये भी दिया हुआ है कि ये कौन सी साइड है, A, B and C. And check what I'm saying. A right angle triangle ABC with side 5, 12 and 13 centimeter is revolved about 12 centimeter. अब इसके अगेंस्ट रिवॉल्व हो रही है. ठीक. अब चेक इट कि व्हाट आई वांट टू से. रिवॉल्व करने का मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर हम इसको ऐसे रिवॉल्व करते तो ये एक सर्कल बनाएगी. And now if you join this point, बताइए ये कौन सी फिगर बन गई? Cone. It's a cone. हो गया ना. नीचे सर्कुलर पार्ट है और ऊपर क्या है, कोनिकल पार्ट है. इसको अगर हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में बनाए तो चेक इट, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते. फाइव, 12 and 30. ओके. इतनी ही डिस्टेंस पे ऐसे आएगा. तो हमने इसको ऐसे मूव कर दिया. ये 5 सेंटीमीटर वाली साइड को हमने घुमाया है, इस साइड को. एंड इफ यू मूव इट
तो यहां से इसके साथ मैच हो गया. टेल मी नाउ इट इज अ कोन और नॉट. Yes, sir. It is a cone. नाउ व्हाट ही आस्क्ड यू. अच्छा बच्चे ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसे भी हो सकता था कि रिवॉल्व अराउंड 5 सेंटीमीटर. फिर पता ये क्या होता. Sir, the radius would have changed. हाँ यस. अब देखिए नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, height is 12 centimeter and this is 13 centimeter. ओके और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम. तो आई थिंक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए हाउ वी कैन मूव टू द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इन दिस पर्टिकुलर केस इज पाई आर स्क्वायर h divided by 3. Now what we can say 1 by 3, pi is 22 by 7, r square 5 into 5 and what is h 12. Just simplify it. अच्छा एक चीज और देखिएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड अपडेट. हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बच्चे. जस्ट सॉल्व इट एंड मल्टीप्लाई द टर्म्स. सॉल्व कर लोगे ना इसको. Yes, sir. इट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा सेम क्वेश्चन देखिए बच्चे आपके पास. अब जो मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा था उसने सेम सिचुएशन दे दी. अब उसने कहा कि इफ वी रिवॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. here is 5, here is 12, this is 5 and here is 12, and he said if we revolve this along 12 सेंटीमीटर. अब आप इसके अराउंड इसको क्या करें, रिवॉल्व करें. हो गया. नाउ यू विल चेक इट. 1 and 1 2. Again this is a cone. बस अब इसमें चेंज क्या है बच्चे. नाउ रेडियस इज 12 12 centimeter. and height is 5. आपके इस तीसरे पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. दैट इज अ स्लांट हाइट. और सेम फिर फाइंड आउट कर दीजिए. सेम फार्मूला बट द थिंग्स विच आर चेंज्ड 1 by 3, 22 by 7 इंस्टेड ऑफ 5. अब आप क्या लिखेंगे 12 into 12 and instead of 5 क्या लिखेंगे 5 and you will solve it. It will be centimeter cube. Are you getting my point? Yes, sir. तो एक आपके पास ये भी. अच्छा आगे चलते हैं बच्चे. आई होप आप सब ने ये देखा होगा. Yes, sir. बच्चे Yes, इसका ना sir. इसके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि इफ वी थ्रो अ वीड एट सिंगल पॉइंट और कंटिन्यूसली हम उस पे करते रहे तो वो आपके पास किस शेप, कौन सी शेप में आ जाता है. Cone. कोन की शेप में आ जाता है जैसे ये आपके पास बना हुआ है. तो इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज सेइंग द सेम थिंग. इन क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट ही इज सेइंग, he said a heap of wheat in the form of cone. एक आपके पास heap है cone की फॉर्म में. ओके and whose diameter is
10.5. So I can say radius is 10.5 divided by 2 and height is 3 centimeter. Height कितनी है बच्चे? 3 centimeter. Find its volume. The heap is to be covered by a canvas. अब देखिए बाद में हम उसको क्या करेंगे? कवर्ड करेंगे. ये आपके पास क्या था? जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये अपने पास एक वीट है, तो इसको हम कैनवस के साथ या किसी पेपर के साथ या किसी शीट के साथ क्या करेंगे? कवर अप करेंगे. ओके, तो जैसे ही हम इसको कवर करेंगे, ही सेड कवर्ड बाय अ कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस. अच्छा ये बताइए विच फार्मूला वी यूज्ड फॉर द कैनवस? So curved surface area. Yes, it's simple curved surface area which is pi r and l. देखिए बच्चे, for pi r and l you need l, but अभी तो चल जाएगा. when we are dealing with volume, तो volume तो आपको पता ही है, we will simply write it as 1/3. r is equal to आपको पता ही है कितना लिखा हुआ है 10.5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5.25 होल स्क्वायर. अच्छा एक पाई रह गया था, तो पाई कैन बी रिटन एज 22/7. एंड व्हाट इज h? h is equal to 3 centimeter. ओके, आई थिंक इसको हम सॉल्व कर लेंगे एंड इट बिकम्स द वॉल्यूम. नाउ कम ऑन टू माय पॉइंट, जो मैं आपको बता रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द स्लांट हाइट. और क्यों बता रहा हूं इसको? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है. Check it. Here is L. And what we can say? L square is equal to 5.25 whole square plus 3 centimeters square. Got my point? अच्छा इसमें आपको एक और भी चीज करनी होगी बच्चे, इंटरेस्टिंग. ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा. फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो L कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 5.25 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9. तो बच्चे अगर आप 5.25 का स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 27 point something plus 9, which is equal to 36.56. अच्छा किसी को याद है हाउ वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी? क्योंकि हमें L तो चाहिए ना बच्चे. याद कीजिए हमने एक डिवीजन का मेथड किया था क्लास 8 में. 36.56. फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई इट विथ 6. ठीक है, ये क्या हो गया 36. नाउ इट बिकम्स 12. हेयर इज 0. डेसिमल को हम यहां लेके जाएंगे तो 56. अभी भी नहीं देखो किसी के साथ जा रहा, तो वी विल राइट इट एज अ 0. 0 यहां भी आ जाएगी और आपके पास 00 जाएगा. तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो इट विल बी 6.05 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है बच्चे. ओके, नाउ आफ्टर दिस we will find the area of the canvas, and area of the canvas can be written as pi r l. Pi is 22/7. देखिए सारी चीजें इसमें क्या होगी, r is 5.25,
and what is L? 6.05. Solve it. इनको सॉल्व कर दीजिए and you will find the answer. ओके, फिर से चेक कीजिए जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि सिंपली गो अहेड विद इट. पहला, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट, और ये टोटली डेसिमल्स में है, तो वी विल सॉल्व दीज. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे. अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 9.82 सेंटीमीटर cube. Sorry, not cube, it is a square, because this is the area of the canvas. And these are the questions related to volume of the cone in your booklet. Got my point, बच्चे? अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, नेक्स्ट सेशन. ये 13.8 एक्सरसाइज थी बच्चे. नाउ वी विल मूव अबाउट sphere and hemisphere in the next session.